Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So today in this particular session, we are actually going to take a look at a set from CAT 24. This was a Venn diagram based set. I would say this was a very beautifully crafted set. बहुत ज़्यादा difficult नहीं था, but definitely लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी उस लैंग्वेज को वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर हम लेके आएंगे इट वुड हैव बीन वेरी कन्वीनियंट फॉर अस सो possibly with respect to the exam this could have been the third or the fourth set, right, depending on the other sets that actually came in this particular exam. And before we actually look into this particular solution, I would all again advise, as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start understanding this particular set. Let's see what is actually being given. So, the chart below provides complete information about the number of countries visited by Dheeraj, Samantha, and Nitesh, right? So, there are three people involved in Asia, Europe, and the rest of the world, represented by ROW. So, इस particular अगर ग्राफ को देखोगे बार ग्राफ को, so इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल धीरज का in particular areas में एशिया में number of countries visited, that is actually given by this solid blue line, that is 3, right? Similarly Dheeraj would have been visiting how many countries in Europe? 6 and 8 के बीच में exactly, so integral values are definitely, तो confusion में नहीं है, 7 and यहाँ पे कितना है 1. So Dheeraj would have visited 3, 7 and 1 countries in Asia, Europe and rest of the world. When it comes to Samantha में एशिया का नंबर मिसिंग है तो definitely will be taking that as 0. Samantha would be visiting 9 countries in Europe and she would be visiting 4 countries in the rest of the world. And finally, with respect to Nitesh, he would have been visiting 1 country from Asia, then 6 countries from Europe, and 12 countries from the rest of the world. So these are the numbers given, right? ऑब्वियसली अब अपने को एक चीज यहाँ पे क्लिक करने वाली है. फॉर एग्जाम्पल जैसे धीरज 7 कंट्रीज हमारा फॉर एग्जाम्पल यूरोप में विजिट कर रहा है. Samantha is visiting 9 countries in Europe, and similarly Nitesh is visiting 6 countries in Europe. So first of all हमें कहीं ना कहीं thought आना चाहिए, even without looking at this condition, is there any kind of overlap that is actually happening? एंड अगर ओवरलैप हुआ, दिस इज डेफिनेटली गोइंग इनटू द डोमेन ऑफ वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सर्कल्स बनाएंगे और उसमें नंबर पुट डाउन करेंगे. इफ वी गेट टू लाइक नो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ ओवरलैप. अब वो ओवरलैप अगर कहाँ से समझ में आएगा है या फिर नहीं, थ्रू दीज पॉइंट्स इटसेल्फ, राइट? और क्वेश्चंस को भी देखोगे तो डेफिनेटली वो डेफिनेटली हिंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवरलैप वगैरह तो है. नाउ uh, let's read the conditions very briefly and then we'll move on to the next slide and start solving. The following additional facts are also known about the countries visited by them. 32 countries were visited by at least one of them. So there are a total of 32 countries involved. Now, overlap है कि नहीं है, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए मैं सबसे पहले सिंपली नंबर्स को एड अप करके देखता हूँ. जैसे यहाँ पे 7 + 3 10 + 1 11 countries has been visited by what? धीरज. Samantha ने 9 + 4 13 countries. Nitesh ने कितना? 6 + 1 7 12 7 is 19. Now this addition is what? 30 plus 13, 30 plus 13 43. So definitely, because this addition is going above this number 32, because the total number of countries involved in this particular context should be 32 only. बट यहाँ पे इनके अगर हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड अगर एडअप कर रहे हैं रिस्पेक्टिव तीनों लोगों के, that is actually going beyond that 32 mark, 43 चला जा रहा है. So definitely there has to be some overlap between the countries visited by them. Now before I actually read on the remaining points, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना है, फर्स्ट आई एक्सप्लेन दैट पार्ट. लेट मी फर्स्ट क्विकली राइट डाउन ऑल द नंबर्स. तो धीरज ने एशिया में कितना विजिट करा है उसी ऑर्डर में, राइट? एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो 371, सो दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 1. देन समांता का 09409, दिस इज 4, राइट? एंड देन नितेश के लिए कितना हो गया? 1 6 and 12. So this is 1 6 and 12. Perfect.
नाउ ये वेन डायग्राम किस चीज के लिए बना हुआ है? अब समझो एक चीज, जैसे एशिया में फॉर एग्जांपल, एशिया में कुछ कंट्रीज धीरज विजिट करेगा, कुछ कंट्रीज समांथा विजिट करेगी, जीरो है नहीं विजिट करेगी, बट यस गोइंग बाय द लैंग्वेज यू कैन से दैट। एंड एशिया में कुछ कंट्रीज नितेश विजिट करेगा। नाउ बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट द ओवरलैप बिटवीन एशिया इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एशिया और यूरोप के कंट्रीज में कोई ओवरलैप हो सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो हम क्या कर सकते हैं, तीन वेन डायग्राम बना सकते हैं। दिस फर्स्ट वन वुड बी फॉर एशिया, दिस सेकेंड वन वुड बी फॉर यूरोप, एंड द थर्ड वन वुड बी गिवन टू ROW, that is rest of the world. और ये तीन सर्कल्स किस लिए? एशिया में there would be certain countries which would be visited by धीरज, देन कुछ कंट्रीज समांथा विजिट करेगी और कुछ कंट्रीज नितेश विजिट करेगा। लेट्स राइट इट डाउन। सिमिलरली यूरोप में भी डी, एस एंड एन, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अगेन डी, एस एंड एन। राइट, ये हमने इनिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट डाउन कर ली है। नाउ सबसे पहले वी कैन एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग द कंडीशंस आल्सो, बट एक चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, जैसे जहाँ पे भी जीरो है वो बहुत इजी है, तो जीरो वाला पार्ट तो पहले कवर करके रख ही लगता है। जैसे एशिया में समांथा इज विजिटिंग जीरो कंट्रीज, तो एशिया में समांथा का जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ क्या चला जाएगा? जीरो। सो दिस हैज टू बी जीरो, दिस हैज टू बी जीरो, दिस हैज टू बी जीरो, एंड दिस ऑल्सो हैज टू बी अ जीरो। हाँ, बट कहीं और अब हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल धीरज का एशिया में थ्री है, अब धीरज का एशिया में थ्री, दिस प्लस दिस थ्री है, अब कहां पे कितना नंबर आएगा दैट वी डोंट नो, तो उसी के लिए डेफिनेटली वी नीड सर्टेन पॉइंटर्स कंडीशंस। वो कंडीशन हमारी यहां पे दी हुई है इन दीज 5 पॉइंट्स। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था। दिस इज एक्चुअली गिविंग मी द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, मे बी नॉट यूजफुल राइट नाउ, बट येस लेटर ऑन डेफिनेटली हम इसका यूज करेंगे। सो ये क्या कहता है, 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो एशिया प्लस यूरोप प्लस ROW, एशिया का जो टोटल होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ ओवरलैप, यूरोप का जो टोटल होगा, यूरोप में जितनी भी टोटल कंट्रीज होंगी विदाउट एनी ओवरलैप, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जितने कंट्रीज होंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ ओवरलैप, उन सबका टोटल मिला के हमारा कितना आना चाहिए? 32, जो कि अभी नहीं आ रहा है बिकॉज डेफिनेटली हमारा ओवरलैप है। क्लियर है? ओके, सो इसको हम बाद में यूज करते हैं, लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड। सेकेंड पॉइंट पे आओ। USA in the rest of the world is the only country that was visited by all three of them. Now all three of them एशिया में भी था, यूरोप में भी था और ROW में भी था रीजन वाइज। एशिया में ऑलरेडी हम क्या लिख चुके थे? जीरो, तो एशिया में हमारा जीरो आ जाएगा बिकॉज ऑफ समांथा। ठीक, नाउ USA in ROW is the only country that was visited by all three of them. तो हम इससे डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज ओनली वन कंट्री इन्वॉल्व एवरीवेयर which is actually being visited by all three of them. तो all three वाला यहां पे नंबर क्या आ जाएगा हमारा? वन, एंड दैट वी नो इज एक्चुअली USA। ठीक है, नाम की जरूरत पड़ेगी तो वी कैन डेफिनेटली रेफर बैक टू द सेकंड पॉइंट, बट यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा क्रूशियल क्या है, ये नंबर वन लिखना। अब यहाँ पे ऑल थ्री में नंबर वन और अकेला एक नंबर वन ऑल थ्री में यहीं पे आना है, तो बाकी जगह यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे यूरोप में भी डेफिनेटली फिर क्या आ जाएगा? जीरो, बिकॉज अगेन USA इज द ओनली कंट्री दैट वॉज विजिटेड बाई ऑल थ्री ऑफ देम। ऑल थ्री ऑफ देम के तीन पॉसिबल वैल्यूज थे, दिस दिस एंड दिस, जिसमें सिर्फ यहां पे क्या आएगा हमारा? ROW में वन, दैट इज USA। बाकी जगह क्या जाएगा? जीरो। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन। क्लियर? देन इसके थ्रू कुछ और ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? एक बार जल्दी से हम नंबर्स देखते हैं। आई जस्ट सी द नंबर्स क्लियरली। यस, सो ओके, नाउ धीरज के नंबर्स अगर नोटिस करो, ठीक है, धीरज में ROW में टोटली हमारा वन था ना, धीरज में ROW में टोटली हमारा वन था। ठीक है, व्हाट आई आल्सो डू इज जब भी कोई नंबर सेटिस्फाई होगा आई जस्ट टिक दैट पार्ट। ठीक है, तो ये जीरो मेरा सेटिस्फाई हो गया था। धीरज का ROW में टोटल हमारा वन आना चाहिए। नाउ धीरज का ROW में टोटल वन ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सो दिस वन इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। परफेक्ट। इसके बाद तो अभी फिलहाल हम कुछ कर नहीं सकते, दिस वन इज स्टिल रिमेनिंग। नितेश का कहीं पे वन आना है, दैट वन कुड बी हियर ऑल्सो, दैट वन कुड बी हियर ऑल्सो, पॉसिबिलिटीज है। तो दिस सेकेंड पॉइंट इज नाउ डन। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। चाइना विच इज एक्चुअली फ्रॉम एशिया, लुकिंग एट एशिया राइट नाउ, चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री that was visited by both धीरज and नितेश but not Samantha. Now पहले तो ये रीजन आइडेंटिफाई कर लो, धीरज एंड नितेश बट नॉट Samantha. तो धीरज एंड नितेश बट नॉट Samantha is going to be this, this and this.
इसमें ये कह रहा है कि चाइना इज द ओनली कंट्री विच इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू एशिया. चाइना इन एशिया इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय दैट कॉम्बिनेशन, दैट इज DNN बट नॉट S. तो DNN बट नॉट S में सिर्फ एक ही कंट्री लाई करती है एंड दैट इज चाइना, और वो भी कहां पे, एशिया वाले रीजन में. दैट मीन्स यहां क्या है, हमारा वन है. एंड वो कंट्री हमें पता है डेफिनेटली क्या है, चाइना है. इसके अलावा यूरोप में फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. यूरोप में ऐसी कोई कंट्री नहीं है विच इज एक्चुअली विजिटेड बाय DNN बट नॉट S. और यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी हमें क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है. तो इसीलिए वेन डायग्राम एक्चुअली बड़े है, बिकॉज हमें पहले ही नंबर्स के थ्रू क्लैरिटी आ चुकी है. तो यहाँ पे हम डेफिनेटली फिर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं. लेट्स क्लीन द स्लेट अप. राइट, सो फार सो गुड. एंड we're done with this third point. Clear? Okay, now moving on. Fourth point. France, which is in Europe. तो यूरोप में फोकस करेंगे. France, which is in Europe, is the only country outside Asia. तो एशिया के बाहर France is the only country which was visited by both DNS but not N. तो DNS but not N, पहले तो ये देखते हैं. तो D and S but not N कौन सा रीजन है, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन. तो ये क्या कहता है, फ्रांस एंड यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वॉज विजिटेड बाई बोथ धीरज एंड समांथा बट नॉट बाई नितेश. इसका मतलब धीरज एंड समांथा बट नॉट नितेश एशिया के बाहर अकेली वो कंट्री है ना, तो वो कंट्री हमारी यहीं पे आएगी. सो दिस हैज टू बी वन, राइट. एंड ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पता है DNS बट नॉट एन. इस वाले डायग्राम तो वैसे भी वो क्या है, जीरो, तो इसकी टेंशन भी नहीं है अपने को. आउटसाइड एशिया उसने बोला था, तो यहीं पे वो वन कंट्री आएगी. यहाँ पे भी वैसे भी जीरो है, यहाँ पे वैसे भी जीरो है, तो वो वन यहाँ पे आएगा. एंड दिस वन इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग दिस फ्रांस. तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. राइट, दिस इज ऑल्सो नाउ डन. दिस इज फोर्थ द लाइक पॉइंट, ठीक है. देन फिफ्थ पॉइंट फाइनली क्या बोलता है, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ S एंड N आर इन यूरोप. नाउ लेट्स फर्स्ट फोकस्ड ऑन S एंड N. तो S एंड N यहां पे तो ये दोनों मिला के जीरो है. तो S एंड N का टोटल दिस एंड दिस है. और ये कह रहा है हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ S एंड N आर इन यूरोप. तो इसका मतलब अगर यहां पे S एंड N कुछ है नहीं, तो S एंड N मिला के जितना भी होगा, जो कि दिस प्लस दिस है, उसमें से हाफ हमारा यूरोप में है. मतलब यहां हाफ है उस चीज का, तो रिमेनिंग हाफ ऑटोमेटिकली फिर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगा. आई अगेन एक्सप्लेन. हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समांथा एंड नितेश आर इन यूरोप. नाउ समांथा एंड नितेश की टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बोथ वाला कहां का है, दिस प्लस दिस प्लस दिस. ये ऑलरेडी हमारा क्या है, जीरो, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. बचा हमारा वैल्यू कहां आ सकता है, यहां पे और यहां पे, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर नॉट नोन टू अस. बट इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी ऐसी कंट्रीज है विजिटेड बाय बोथ समांथा एंड नितेश, उसमें से आधा यूरोप में है. तो आधा अगर यूरोप में है, तो आधा हमारा ROW में भी तो होगा. सो दैट एसेंशियली मीन्स कि यहां पे जितनी भी वैल्यू है हमारी ओवरऑल, वही वैल्यू मेरी यहां पे भी आएगी ओवरऑल. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, बिल्कुल ये क्लियर अपना होना चाहिए कि इसमें को अपना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है. नाउ इसमें अभी हम वेरिएबल्स ले लेंगे एक बार. हम जल्दी से और पहले देखते हैं कि क्या हम कुछ और वैल्यूज यहाँ पे थ्रू दिस टेबल जस्टिफाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं. एक बार हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो विल कम टू दिस पॉइंट कि ये दोनों मिला के, मतलब ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, मिला के बराबर होनी चाहिए, ठीक. अब एक सेकंड के लिए पहले टेबल पे आते हैं. नाउ एशिया में नोटिस करो, ये जीरो हमारा सेटिस्फाइड था, नितेश का हमारा वन आना था. एशिया में नितेश का ऑलरेडी हमारा वन आ चुका है. इसका ये मतलब निकल के आता है कि नितेश का अब यहां पे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा. सो दिस हैज टू बी अ जीरो, बिकॉज नितेश का एशिया में वन सेटिस्फाइड है ऑलरेडी. नाउ एशिया में धीरज का टोटल कितना आना था, थ्री आना था. तो दिनेश का अगर टोटल थ्री आना है, यहाँ पे वन है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारा, टू. सो दिस इज नाउ डन. और एशिया में हम अब गारंटी से बोल सकते हैं हाउ मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया हैव बीन विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, टू प्लस वन दैट इज थ्री. ये थ्री हमारा जस्टिफाई हो गया. नाउ मूविंग ऑन. इसके बाद कुछ और हमारा लग रहा है सेटिस्फाई होने लग रहा है. जैसे यूरोप का टोटल सेवन है, यूरोप का धीरज का सेवन है. नाउ धीरज का यूरोप में टोटल सेवन है. दिस कैन बी डन बिकॉज धीरज का यूरोप में ऑलरेडी कितना आ रखा है, वन आ रखा है, ये दोनों जीरो है, तो बचा हुआ सिक्स यहाँ पे आएगा. दिस सेवन इज नाउ ऑल्सो डन. क्लियर. बाकी समांथा का टोटल नाइन बनना है यूरोप में, राइट, समांथा का नाइन.
दिस प्लस दिस है, वी कैन नॉट से। नितेश का 6 है, दिस प्लस दिस इज 6, वी कैन नॉट से। और इस पर्टिकुलर डायग्राम में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा समांथा का 4 बचा है, वी कैन नॉट से बिकॉज दिस प्लस दिस इज एक्चुअली 4, एंड नितेश का 12 है, दिस प्लस दिस इज एक्चुअली 12। सो नाउ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट पॉइंट कि ये वैल्यू ओवरऑल इज इक्वल टू ये वैल्यू ओवरऑल। ठीक है, तो अभी काम करते हैं सिंपल सा, लेट्स यूज सम बेसिक वेरिएबल्स इन दिस। लेट्स अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मान लो x है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कितना है हमारा x है, और मे बी बेटर लेट्स नॉट पुट अ नेगेटिव साइन एनीवेयर, एक काम करते हैं, इधर वाली वैल्यू को सपोज हम क्या कहते हैं x है। अब बिकॉज इधर x है तो ये दोनों मिला के कितना हुआ हमारा x+1। तो मतलब क्या था, हमने पहले क्या समझा, ये दोनों मिला के भी क्या होना चाहिए x+1, सो आई जस्ट सिंपली राइट x+1 ओवर हियर। ये हो गया हमारा कितना x+1। अब देखो आपको करना क्या है, आप ना ये दोनों वैल्यूज लिख लो। कैसे लिखेंगे, इन ऑब्वियसली नंबर्स के थ्रू। समांथा का टोटल कितना बनना था, 9 बनना था। नितेश का कितना टोटल बनना था, 6 बनना था, राइट। नाउ लेट्स पुट द वेरिएबल्स, मे बी हम कोई एक वेरिएबल लिख के भी काम चला सकते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, फॉर क्लैरिटी पर्पस में दोनों नंबर लिखते रहो। तो समांथा के सर्कल का टोटल कितना बनना है, 9 बनना है। 9 में से ये पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया, x+2 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो x+2 अगर हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा हमारा, 7 माइनस ऑफ x यहाँ पे। ठीक है, दिस इज जस्टिफाइड, 7 + 1 + 1 9, और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो दिस गिव्स अस 9। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से x+1 सब्ट्रैक्ट हुआ है ओवरऑल, तो 6 में से x+1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा हमारा, 5 माइनस ऑफ x। ठीक है, सिमिलर काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा 4 एंड 12 है, समांथा का 4 है, नितेश का कितना है, 12 है। तो समांथा के 4 के थ्रू ये नंबर लिखते हैं, 4 में से कितना गया, x+1, तो 4 में से x+1 गया तो कितना बचा हमारा, 3 माइनस ऑफ x। सिमिलरली नितेश का टोटल 12 है, 12 में से x+1 गया तो कितना बचा हमारा, ये 11 माइनस ऑफ x। अब फाइनली फाइनली अगर नोटिस करोगे तो सिर्फ हमें क्या फिगर आउट करना बचा है, ये x की वैल्यू। बिकॉज जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आएगी हम सारे पॉसिबल रीजन का अलग अलग वैल्यू बता सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जिस तरीके से मैंने एशिया का टोटल देख लिया, बिकॉज यहां तो सब यूनिक नंबर मेरे को पहले ही फिगर आउट हो गए थे, दिस इज 3। मैं यूरोप का टोटल पहले लिखना चाहूंगा। अब यूरोप का टोटल डेफिनेटली एक्स के टर्म्स में आएगा, तो कोई नहीं, लिख लो, यूरोप का टोटल एक्स के टर्म्स में आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी पॉसिबली एक्स के टर्म में आएगा। ये तीनों एडअप करके हमें किसके इक्वल डालना है, 32, और यही हमने स्टार्टिंग में समझा था, विदाउट एनी ओवरलैप। सारे वेन डायग्राम से टोटल मिला के कितना आ जाना चाहिए हमारा, 32। बस ये काम रिपीट कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये हमारा समांथा का टोटल वापस क्यों ऐड करना है, ये सब कुछ कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। बाहर वाली वैल्यूज ऐड कर लेते हैं, तो 9 के बाहर कितना है, 6 + 5 11, तो 11 + 9 20 माइनस एक्स फिलहाल ये दिख रहा है, दिस इज 20 माइनस एक्स करेंटली। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नितेश का टोटल हमारा बड़ा नंबर है, दैट इज ऑलरेडी 12। 12 के बाहर क्या वैल्यूज है, 12 के बाहर हमारा सिर्फ कितना है, 3 माइनस एक्स। सो 12 + 3 माइनस एक्स, सो दैट इज 15 माइनस एक्स। ये हो गया हमारे करंट टोटल। अब हम करने क्या वाले थे, सिर्फ इन तीनों का जो एडिशन होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 32। सो लेट्स ऐड एवरीथिंग अप। सो 20 + 15 + 3 कितना हो जाएगा, 35, 35 + 3 38, 38 और -2x। नाउ 38 - 2x इज नथिंग बट इक्वल टू 32। तो यहां से 38 - 32 आ जाएगा। ठीक है, 38 - 32 दैट इज 6, एंड 6 इज एक्चुअली इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। एंड नाउ एज सून एज वी हैव दिस, लाइक से x की वैल्यू 3, तो ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, निकाल लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं। सो x का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। आई जस्ट राइट इट डाउन विद अ डिफरेंट कलर। तो x की वैल्यू 3 है, ये कितना हो गया, 3 + 1 से 4, 5 - 3 दिस इज 2, दिस इज 7 माइनस x, 7 - 3 इज 4। देन यहाँ पे 3 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा 0। एक्स की वैल्यू कितनी हुई हमारी यहाँ पे, फिर से 3, और 11 माइनस एक्स, 11 माइनस 3, ये कितना बन जाएगा हमारा, 8। एंड नाउ एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, एवरीथिंग बैलेंसेस आउट। नाउ वी कैन एक्चुअली गो टू द प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समांथा एंड नितेश। तो बेसिकली एशिया का टोटल बताना था, ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया। तो एशिया का टोटल हमारा कितना आया, 3। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 3, डन। सेकंड,
हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड ओनली बाय नितेश? यूरोप में ओनली नितेश देख लो, तो यूरोप में ओनली नितेश इज एक्चुअली 2। ठीक है, यूरोप में नितेश visited these two countries which were not visited by any of the other two persons, right? So only नितेश वाला कितना हो गया हमारा? 2 यूरोप में. So the answer to the second problem is 2. Third question, how many countries in ROW were visited by both नितेश and samantha? तो ROW में नितेश and samantha का ओवरलैप देखना है. ठीक है, बोथ नितेश एंड समांता, तो ROW में नितेश एंड समांता का ओवरलैप देखना है. सो दिस इज 3+1, बोथ नितेश एंड समांता वुड बी 4. And the final problem, how many countries in Europe were visited by exactly one of धीरज, samantha and नितेश? exactly one वाले रीजन किसमें? यूरोप में. तो यूरोप में exactly one, तो ये काउंट होगा 6, ये काउंट होगा 4 और ये काउंट होगा हमारा 2. That is 6 plus 4 plus 2 and that will give you what? 12. So answer to the fourth problem is actually 12. Right, so I hope you have understood this set. This was a beautiful set because इसमें Venn diagram का initial logic अपने को तुरंत से नहीं दिख रहा है, but yes, once we start reading this, once we start understanding there is a certain kind of overlap involved, then we actually get to know कि हम यहाँ पे Venn diagram use कर सकते हैं. Venn diagram से बहुत easily हमारे numbers यहाँ पे crack हो जाएंगे. Right, so I hope you have understood this set. And finally, we are actually starting with our next CAT batch on the 6th of January 25. So if you're actually looking for a CAT 25 comprehensive program, so the links are there in the description. And also, if you're actually preparing for CMAT, Maharashtra City and CVT, there is a combined batch going on. इसके भी links हमारे description में है, and you can definitely go and check out that. Right, so I hope this is clear. See you in the next session. Thank you guys. Bye.